عرفان رمضان کا ہے، واقعہ جو ہے وہ مباحثے کا ہے، تقریر کا ہے اور انداز بیاں کا ہے، اور اس واقعے میں کیا واقع ہونے والا ہے اس کے لیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں مقررین کے پاس۔ انداز بیاں نامی سیگمنٹ کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح انتہائی معزز قابل احترام ججز ہمارے پاس ہیں، ہمارا اساتذہ ہیں، ہمیں ان پہ ناز ہے، ہمارا مان ہے۔ ڈاکٹر انجم رضوی صاحب، ادریس غاری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ہی کی اجازت سے آج کا یہ جو مباحثے کا سیگمنٹ ہے، انداز بیاں ہے، اس کا میں آغاز کیے دیتا ہوں۔ اور ہمیشہ جیسے کہ شعر آپ نے سنا سیما غزل صاحبہ سے، ایک شعر ہم سنیں گے انصار بڑھنی صاحب سے، اور اس شعر کے بعد اس کی ابتدا ہو جائے گی۔ ہمارے پاس آج جو مقررین ہیں میں ان کا تعارف آپ کو کرا دوں۔ سب سے پہلے مدثر علی ہیں، شرجیل بیگ ہیں، رومینہ فراز ہیں، مرزا اشر بیگ ہیں۔ تو انصار بڑھنی صاحب، ایک شعر آپ کی طرف سے۔ پاکستان کے نام جی کچھ اس طرح سے ہے، میں چونکہ شاعر نہیں ہوں لیکن جو میرے اندر کا جذبہ ہے وہ یہ کہ کرو نہ غم کے ضرورت پڑی تو ہم دیں گے، لہو کا تیل چراغوں میں ڈالنے کے لیے۔ لہو کا تیل چراغوں میں ڈال دیں گے۔ کیا خلوص ہے اس میں، کیا جذبہ ہے، ماشاءاللہ۔ جو سب سے پہلے ہمارے پاس مقرر ہے مدثر علی، آپ کا موضوع ہے، یعنی اگر یہ قرارداد ہے تو یہ اس طرح سے ہوگی، یہ نسل انقلاب لائے گی۔ انقلاب لائے گی کہ نہیں لائے گی، اس حوالے سے دلائل ہیں مدثر علی کے پاس۔ موافقت میں گفتگو کریں گے۔ مدثر، دل سے کہہ دو۔ نہ ذوق سوز پیدا کر، نہ عشق ساز پیدا کر، جو ہمت ہو تو پہلے قوت پرواز پیدا کر، نیا جذبہ، نئی ہمت، نیا انداز پیدا کر، حسن مغرب تجھے یہاں برباد کر دے گا، تو اپنے آئینے میں مشرقی اعجاز پیدا کر، اور تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود انقلاب پیدا کر۔ صدر علی وقار پیش کردہ قرارداد کی یہ نسل انقلاب لائے گی۔ قرارداد میں لفظ یہ نسل سے مراد پاکستان میں موجود 64% نوجوانوں کا طبقہ، انقلاب لانے سے مراد اپنی قابلیت و صلاحیت کی بنیاد پر تبدیلی لانا۔ اس قرارداد کا مفہوم کنی کچھ یوں نکلتا ہے کہ پاکستان میں موجود 64% نوجوان اپنی صلاحیت و قابلیت کی بنیاد پر ملک میں تبدیلی لائیں گے۔ میں اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتا ہوں، کیونکہ صدر علی وقار وہ ملک جہاں پر لوگ تفرقات میں بٹے ہوئے ہوں، جہاں لوگوں کو دو وقت کی روٹی نصیب نہ ہو، وہیں دوسری جانب یہ آج کی نسل کراچی کی سڑکوں پر بلا کسی تفریق، بلا معاوضہ لوگوں کو مفت سحری و افطاری کرواتی ہے۔ کہ صدر علی وقار وہ ملک جہاں کے 58% آبادی تعلیم کے زیور سے محروم ہو، وہاں پر کوئی 5 سالہ آیان قریشی دنیا کا سب سے نہ مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ بن جاتا ہے۔ اور صرف آیان قریشی نہیں بلکہ مومنہ سیدین، روما سیدین، ثانیہ سیدین، سبحان سیدین، محمد مصطفیٰ اور بابر اقبال، یہ وہ ننھے نونہال ہے جنہوں نے کم عمری میں مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ کی ڈگری حاصل کی۔ صدر علی وقار وہ ملک جہاں پر طالب علم کو اپنی تعلیمی اخراجات اٹھانے کے لیے نوکریوں کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، وہیں پر کوئی لیاری کی 17 سالہ ماہین، 15 سالہ شیریں اور اس کا بھائی حسن کراچی کی سڑکوں پر اسٹریٹ اسکول قائم کر کراچی کی سڑکوں پر رہنے والے بچوں کو مفت تعلیم دیتی ہے۔ کہ صدر علی وقار یہ نسل انقلاب لائے گی۔ ہاں، صدر علی وقار یہ نسل انقلاب لائے گی، کیونکہ یہ نسل جب جنگ کے محاذ پر جاتی ہے تو حسن صدیقی بن کر دشمن کے 2 جہاز کو زمیں بوس کر دیتی ہے۔ یہ نسل جب اپنے لیے مانگنے انصاف جاتی ہے تو زینب کے قاتل کو سزائے موت کا حقدار ٹھہراتی ہے۔ یہ نسل جب اپنی شجاعت و بہادری دکھاتی ہے تو اے پی ایس میں بدترین دہشت گردی ہونے کے باوجود اس اسکول کا دوبارہ رخ کرتی ہے کہ مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ یہ نسل جب اپنی گردن کٹانے کو آتی ہے تو اعتزاز احسن بن کر خودکش بمبار کے سینے سے لپٹ جاتے ہیں اور اپنی جان تو دے دیتے ہیں مگر اپنے سینکڑوں دوستوں کی جان بچا لیتے ہیں۔ یہ نسل جب تدریس و تحریر کے شعبے میں آتی ہے تو حماد شافعی نامی ننھا پروفیسر بنتی ہے، تو کبھی زیدان حامد نامی دنیا کا سب سے چھوٹا رائٹر بن جاتی ہے۔ اور یہ نسل جب اپنی طاقت دکھاتی ہے تو فیس بک پر ہائیبریڈ وار میں اپنے پڑوسی ملک کو شکست سے دوچار کر اپنے ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ کہنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے ہمارے پڑوسیوں کو ہائیبریڈ وار میں شکست سے دوچار کیا۔ لیکن صدر علی وقار میرے مخالف کو کیا معلوم، شاید ان کا تعلق اس طبقے سے جو کہ کھانے کے بجائے تھانہ اور میرے کے بجائے میلے لگتے ہیں۔ صدر علی وقار میں اپنے مخالف کو بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ لاوے دیو کی ہوا میں اچھالتے رہنا، گلوں کے رنگ میں تیزاب ڈالتے رہنا، میں نور بن کر زمانے میں پھیل جاؤں گا، تم سورج میں کیڑے نکالتے رہنا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ بہت ہی اچھا، تم سورج میں کیڑے نکالتے رہنا، یہ آپ کا انداز تھا اور یہ آپ موافقت میں گفتگو کر رہے تھے۔ مخالفت میں ہمارے پاس شرجیل بیگ ہیں۔ شرجیل بیگ، آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، دل سے کہہ دو۔ دلیل ہے نہ کوئی حوالہ ہے ان کے پاس، عجیب لوگ ہیں بس اختلاف رکھتے ہیں۔ جناب والا، اس باشعور ایوان میں پیش کردہ قرارداد یہ نسل انقلاب لائے گی۔
قرارداد میں موجود پہلا اہم لفظ یہ یعنی دور حاضر موجودہ دور، دوسرا اہم لفظ نسل یعنی نوجوان یا پھر آنے والے لوگ، جناب اعلیٰ تیسرا اہم لفظ انقلاب یعنی کایا پلٹنا، اور ایسی کایا پلٹنا کہ مفاد پرستوں کو گرا کر حق کی آواز کے لیے بلند کرنا۔ لیکن جناب والا موصوف جو دلائل دے کر گئے شاید وہ کسی کام کے نہیں تھے، کیونکہ جناب والا انقلاب تو تعلیم سے آتا تھا، انقلاب تو شعور سے آتا تھا، لیکن یہاں تو ہتھیار اٹھانا فخر سمجھا جاتا ہے۔ یہاں اگر غلام کا بچہ اسکول جائے تو اس کو مار دیا جاتا ہے، لیکن وڈیرے کا بچہ جیل میں عیاشی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو بتائیے جناب والا یہ کہاں سے انقلاب آئے گا؟ روٹی کپڑا مکان کے نعروں سے انقلاب نہیں آئے گا، سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگ چلانے سے انقلاب نہیں آئے گا۔ جناب والا انقلاب کے لیے لوگ خون دیتی ہیں، لیکن یہاں تو انقلاب کے لیے کچھ اور کیے جاتے ہیں۔ تبدیلی کے نام پر عوام پر ٹیکس پہ ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں، لیکن جناب والا انقلاب کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ جناب والا بلوچستان میں خوش سالی پر بات کرنے والے لوگ ہمارے حکمران اے سی کے کمرے میں بیٹھ کر منرل واٹر پی کر انقلاب کا درس کہاں سے دیں گے؟ جناب والا تھر کی تپتی ریت پر ننگے پاؤں گھومنے والی عوام اور ان کے حکمران اسلام آباد کی سڑکوں پر پراڈوں میں سفر کرتے ہوں تو بتائیے جناب والا انقلاب کہاں سے آئے گا؟ جناب والا انقلاب تو وہ تھا کہ جو سومناتھ کے مندر ڈھا کر محمود غزنوی لے کر آیا، انقلاب تو وہ تھا جناب والا جو محمد بن قاسم لے کر آیا، انقلاب تو وہ تھا جناب والا جو طارق بن زیاد لے کر آیا۔ اور جناب والا میرے قابل احترام دوست نے جو دلائل دیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا، ارے تم نے ایک کو لٹکتے دیکھا ہے، ذرا بتاؤ شہید علی رضا عابدی کے قاتل کہاں ہیں؟ ذرا بتاؤ اور لوگوں کے قاتل کہاں ہیں؟ ارے اس زمین پر تو کافر کے نعرے لگانا لوگ فرض سمجھتے ہیں، تو بتاؤ کہاں سے انقلاب آئے گا؟ ارے جہاں کا نوجوان چیٹنگ کرنا فرض سمجھتا ہو اور استاد کو دھمکی دے تو بتاؤ کہاں سے انقلاب آئے گا؟ جناب والا انقلاب نہیں آ سکتا، لیکن ہاں میں یہ بتاتا چلوں اپنے دائیں جانب سے مقرر کو اور جو آئیں گے ان کو بھی کہ تم تحریک پاکستان کے کوئی 20 رہنماؤں کے نام گنوا دو، مجھے پورا یقین ہے تم کوئی 15 نام بھی نہیں گنوا سکتے۔ انقلاب کی باتیں کرتے ہو، انقلاب ایسے نہیں آئے گا۔ اور ہاں میں حق پرستوں کے قبیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ گیا اسی لشکر قلیل سے ہوں۔ میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے، میں آج جس جگہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں، کسی دلیل سے ہوں۔ شکریہ۔ کسی دلیل سے ہوں، اور دلائل آپ نے پیش بھی کیے، خوبصورتی سے آپ نے اس کا اظہار بھی کیا، اور یہ دلائل اس لیے بھی پیش ہو رہے ہیں کہ آج کی نوجوان نسل اس سے سبق آموز ہو، سیکھے، اپنے آپ میں سدھار لے کر آئے۔ کیا دیکھتے ہیں انصار صاحب، آج کی نئی نسل میں وہ جذبہ ہے، وہ ذوق، وہ شوق ہے؟ جذبہ تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن سے اس کے ذہن کے اندر یا دل کے اندر ہوتا ہوگا یقیناً، جو وہ پروان چڑھتا ہے اور پھر اس رخ پہ جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن آج کل کی جو میں صورتحال دیکھ رہا ہوں اس میں مایوسی زیادہ آ رہی ہے۔ اچھا، میں مایوسی کفر ہے، جی ایسے مایوسی کفر ہے، لیکن ہمارے رہنما وہ رہنما نہیں رہے، اور اس انداز میں اب لے کے چل رہے ہیں قوم کو کہ دیکھیں اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کہیں بیٹھا ہوں اور میرا خزانہ خالی ہے تو میں کہوں گا اویس میاں خزانہ خالی ہے، پیٹ پہ پتھر باندھو اور کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کھڑے اور مقابلہ کرو۔ میں کہہ رہا ہوں سب ٹھیک ہے، سب اچھا ہے، اور اچھا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے، تو کل جو مایوسی ہوگی وہ آج کی مایوسی سے زیادہ بدتر ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہے۔ تو ہمیں لوگوں کو سچ بتانا ہے، حقیقت دکھانی ہے، اور وہی چیز پسند کرنی ہے جو مجھے اپنے لیے پسند تھی، صحیح، وہی مجھے دوسروں کے لیے بھی پسند کرنی صحیح ہے۔ اگر آج میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز اچھی ہے تو کل اچھی کیوں نہیں تھی؟ صحیح، وہ کل بھی اچھی ہوگی پھر۔ صحیح۔ تو میرے خیال یہ ہے کہ لیکن مایوسی کفر ہے۔ انشاءاللہ ہم سب نے مل کے جاگ پیدا کرنی ہے، صحیح، اور اس ملک میں بہترین قسم کے محب وطن پیدا ایسے ہی، کرنے ہیں۔ ایسے۔ جب محب وطن ہوں گے سارا تو معاملہ قسمت سامنے۔ جاگ جائے۔ کیا بات ہے۔ سیما صاحبہ، جب کوئلے کا جگر چیرتے ہیں تو ہیرا نکلتا ہے، تارے جب ٹوٹتے ہیں تو شہاب ثاقب بنتا ہے، انسان جب ٹوٹتا ہے تو شاعر بن جاتا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔ پھر یہ شاعر بنتا ہے؟ اچھا اچھی تم نے دلیل دی ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا میں یہ مشہور کوئی کیا راز ہے کی بات جاننا چاہتا ہوں۔ ایک وہ کیا مرحلہ تھا کہ آپ کو شاعرہ بننے پہ مجبور کر دیا؟ نہیں وہ کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی بلی نہیں مری تھی دکھ میں شاعرہ ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ لکھنے لکھانے کا ایک وہ تھا شروع سے۔ پھر دوسرا یہ کہ میرے خاندان ایسا تھا نا، میرے پاپا شاعر، میرے بھائی شاعر، میری بہنیں شاعر، تو وہ اور مشاعروں میں آنا جانا،
महफिलें मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, अच्छा, जिनको लोगों ने नहीं देखा। मैंने पापा के पास आते देखती थी मैं उन लोगों को, तो तब से था हमारे ख़ानदान में है। अच्छा, मेरे ख़ानदान के मेरे ख्याल में कोई 35 लोग इसमें मीडिया में आपके अच्छा, जो माशाल्लाह। लिख भी रहे हैं या कहीं डायरेक्टर ना कहीं हैं अपने या फराइज अंजाम दे रहे हाँ। हैं। जबरदस्त। अच्छा, ये खानदानी शायरी चली आ रही है, मैं यूं कहूँ कि जिस तरह खानदानी सियासत होती मौरूसी, है, मौरूसी। मौरूसी शायरी चली आ रही है। जबरदस्त। आपके पिछले शेर ने ज़ौक़ दुबाला कर दिया है, अब तशनगी हो गई है कि एक और शेर आपसे सुनते हैं। अच्छा, जाने किस हाल में है और कहाँ कैसा है, हाय हाय, वाह मैं तो ये भूल गई मेरा मकान कैसा है। आह, हाय हाय हाय, जाने किस हाल में है और कहाँ कैसा है, मैं तो ये भूल गई मेरा मकान कैसा है। ख्वाब देखा था कहीं आग लगी हो जैसे, अब मैं हैरान हूँ कमरे में धुआं कैसा है। आहा, ख्वाब देखा था कहीं आग लगी हो जैसे, अब मैं हैरान हूँ कमरे में धुआं कैसा है। और आखिरी शेर है इसका कि बेकरारी से मेरे पास वो आया लेकिन, बेकरारी से मेरे पास वो आया लेकिन, उसने पूछा भी तो बस ये कि फलां कैसा है। फलां कैसा है, फलां कैसा है, मकान कैसा है। और मुझे इकबाल भी याद आ गया कि मकानी हूँ कि लामका, मकानी हूँ कि लामका हूँ, जहाँ में हूँ कि खुद सारा जहाँ हूँ, वो अपनी लामकानी में रहे मस्त, मुझे इतना बता दें कि मैं कहाँ हूँ। तो मकान और लामकान के तसव्वुर से आपने क्या खूबसूरत ज़ौक़ बांधा है। इंसान इस तसव्वुर में बाज़-औक़ात इतना दूर चला जाता है कि उसके अपने पड़ोसियों का उसको एहसास नहीं होता। आपने तो बहरहाल एक मकसद बताया कि अपने ज़ात से निकल के बाहर झांकोगे तो लोग नज़र आएंगे। खूबसूरत बात है, और इसी का नाम इनकलाब है। मैं अपने देखने और सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ, इनकलाब माशरे की तब्दीली का नाम बाद में है, इनकलाब अपनी ज़ात की तब्दीली का नाम पहले है। इनकलाब हमेशा अपने आप से आगाज़ लेता है और इसकी परवरिश होती है, इसको खुराक देने वाली भूख और अफलास ही होता है। इनकलाब कभी भी अच्छे माहौल में नहीं आता, तो बुरे माहौल इनकलाब की खुराक होते हैं। अपने अंदर इनकलाब लेकर आइए, यही आज का मौजू भी चल रहा है और इसी हवाले से मुबाहिसा भी हो रहा है। अगली मुकर्ररा हमारे पास हैदराबाद से आई हैं, रोमिना फराज आपका नाम है और आप कुछ कहना चाहती हैं। रोमिना फराज, दिल से कह दो। कौम खुद लेगी हिसाब, ऐसा नसाब डालूंगी मैं, भूख दे जिसको खुराक, ऐसा इनकलाब पालूंगी मैं। सदरे ज़ी वक़ार ऐवाने बाशऊर में पेश करदा करारदाद ये नस्ल इनकलाब लाएगी की भरपूर हिमायत करती हूँ। करारदाद में मौजूद पहला हिस्सा ये नस्ल यानी मौजूदा नस्ल जो हर मुश्किल से निपटने का हुनर रखती है, जो दुश्मन से टकराने का अज़म रखती है, जो कुछ नया करने की उमंग रखती है। सदरे ज़ी वक़ार करारदाद में मौजूद दूसरा हिस्सा इनकलाब लाएगी। लफ्ज़ इनकलाब को अगर मंतकी एतबार से देखा जाए तो उसके मायने तब्दीली लाने या काया पलट देने के हैं, और अगर इसी लफ्ज़ को सियासी एतबार से देखा जाए तो इसके मायने जालिम और जाबिर हुक्मरानों के तख्ता पलट देने के हैं। इनकलाब लाएगी यानी तब्दीली लाएगी, मौजूदा मुल्क के निज़ाम को ख़त्म करके ऐसा निज़ाम नाफिज करेगी जो इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न कर देगा। सदर ज़ी वक़ार, जब इस मुल्क पर जुल्म किया जाता है तो ये नस्ल बुरहान वानी बनकर अपने लहू से इनकलाब का बीज बोती है। हाँ, ये नस्ल इनकलाब लाएगी। सदर ज़ी वक़ार, जिस मुल्क में माएँ अपने नौमौलूद बच्चों को सड़क पर फेंक देती हैं तो उस मुल्क में कोई अंसार बन्नी बनकर उन बच्चों की ज़िंदगी संवारता है। तो हाँ, ये नस्ल इनकलाब लाएगी। सदर ज़ी वक़ार, जिस मुल्क में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा को प्राइमरी की स्पेलिंग ना आती हो, वहाँ पर कोई अली मुइन नवाजिश 21 मज़ामीन में A1 ग्रेड लाता है तो हाँ, ये नस्ल इनकलाब लाएगी। सदर ज़ी वक़ार, जिस मुल्क में ट्रैफिक पुलिस वाले से लेकर कानून नाफिज करने वालों तक रिश्वत का कानून राइज हो तो वहाँ कोई इकरारुल हसन बनकर इन तमाम कारिंदों के चेहरे बेनकाब कर देता है तो हाँ, ये नस्ल इनकलाब लाएगी। सदर ज़ी वक़ार, जिस मुल्क में 11 साला बच्चे पबजी खेलते नज़र आते हों वहाँ पर कोई 11 साला हम्माद साफ़ी बनता है और नन्ना प्रोफेसर नौजवानों की किरदार साजी करता हुआ नज़र आता है तो यही इनकलाब की सहर है। हाँ, ये नस्ल इनकलाब लाएगी।
सदर जी वकार मेरे मुखालिफ सिम से आने वाले मेरे फजूल, मेरा मतलब है मेरे फाजिल भाई ने कहा कि ये कौम सिर्फ हैशटैग चलाती है। तो मोहतरम मैं आपको बताती चलूं कि जिस ज़माने में सोशल मीडिया का कानून राइज हो तो वहाँ पर एक हैशटैग कहीं तब्दीलियाँ लाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। सदर जी वकार मेरे सामने बैठा शख्स उवैस रब्बानी जो 313 सिपाहियों का लश्कर लाकर खड़ा कर देता है, और मेरे मुखालिफ सिम से आने वाले मुकर्रीन भी इसी उवैस रब्बानी के अंदाज़े बयां से मुतासिर होकर यहाँ पर तकरीर करने के लिए आए हैं। तो मोहतरम पहले उवैस रब्बानी से मुतासिर होना बंद कीजिए, फिर यहाँ पर आकर बात कीजिएगा। सदर जी वकार मेरे मुखालिफ सिम से आने वाले मुकर्रर शायद खुद को 16वीं सदी का समझते हैं, क्योंकि वही दौर था जहाँ पे इंकलाब का कोई नामो निशान ना था। मगर मैं यहाँ मवाफ़क़त में खड़े होकर 21वीं सदी की नुमाइंदगी कर रही हूँ, तो फिर मैं क्यों ना बड़े फ़ख्र के साथ ये कहूँ कि जब अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जिधर से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। बहुत अच्छे, बहुत प्यारा अंदाज। यूँ तो अल्लामा इकबाल की आखिरी वफ़ात 1938 में हुई थी, उसके बाद दीगर मुकर्रीन आते रहे और लम्हा लम्हा ये एहसास दिलाते रहे। खुद मुझ समेत मैं बाज़-औक़ात कुछ अशार ऐसे ऊपर नीचे कह जाता हूँ, जैसे अभी इससे कबल मकानी हूँ कि आज़ाद मका हूँ को मैंने कुछ मुख्तलिफ अंदाज से प्रेजेंट किया। अशर बेग हमारे पास मीरपुर ख़ास से आए हैं और मीरपुर ख़ास से आने वाली ये सदा क्या कहती है, इसको सुनते हैं। अशर बेग, दिल से कह दो। मैं हक परस्तों की कबील से हूँ, जो हक पे टट जाए उस लश्करे कलील से हूँ। मैं यूं ही नहीं दस्तो गिरेबां ज़माने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। सदर अली वक़ार, ये नस्ल इनकलाब लाएगी। मैं इस करारदाद की भरपूर मुखालफत करता हूँ। करारदाद में मौजूद पहला अहम लफ्ज़ नस्ल, जिससे मुराद दौर हाजिर में मौजूद तमाम लोग, वो चराग जो अभी तक बुझे ना हों। और दूसरा अहम लफ्ज़ इनकलाब। जब चराग की बात हो तो चरागों से अंधेरे छट जाते हैं, बेसम सफ़र को समत मुयस्सर आती है और रोशन मुस्तकबिल की जानिब एक ऐसा दरीचा खुलता है जिससे ताज़ा हवा आती है और जहान ताज़ा की खबर लाती है। उस दरीचे को इनकलाब कहते हैं। और इनकलाब हुआ कितना ही पुराना क्यों ना हो, उसकी दास्तान हमेशा ताज़ा रहती है। सदर मोहतरम, इस करारदाद की मुआफ़क़त में दलाइल देने वाले तबाकुन खुद एतमादी के शिकार लोगों से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि क्या इनकलाब यही है जो तब्दीली लाएगा? क्या इनकलाब यही है जो नया पाकिस्तान बनाएगा? क्या इनकलाब यही है कि जो पबजी खेलकर वक्त बर्बाद करेंगे? क्या इनकलाब यही है कि जो टिकटॉक में तमाशा करेंगे? क्या इनकलाब यही है ज़िवकार? सदर मोहतरम, जब नस्ल दर नस्ल बनास्पति घी इस्तेमाल करती हो और इनकलाब लाने वाली नस्ल बनास्पति घी इस्तेमाल करे तो ज़िवकार वो नस्ल भी बनास्पति ही होती है और उसका जो इनकलाब आता है वो भी बनास्पति होता है। सदर मोहतरम, और आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, जो जालिम हैं उन लोगों से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो इस नस्ल को निशाना हवस बनाकर तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस नस्ल को निशाना बारूद बनाकर स्कूल में लहू लुहान करके तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही कहूँगा बज़्म अदब के बाअदब लोगों से कि जूतियाँ जबर के शहकार पे दे मारेंगे, हर बुते जुल्म को दीवार पे दे मारेंगे। हम ज़मीज़ाद शाहों से उलझ बैठे तो आसमां खींच के दरबार पे दे मारेंगे। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। आपके अंदाज का बहुत बहुत शुक्रिया। आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते, पयाम्बर न मैसर हुआ तो खूब हुआ, ज़बान गैर से क्या शरय आरजू करते। बाज़-औक़ात मुकर्रर घबरा जाता है, मगर आपने नहीं घबराना। डॉक्टर अंजुम रिजवी साहब, क्या ख्याल है, क्या तबसरा है आज के मुकर्रीन के हवाले से? आज मौजू तो बहुत दिलचस्प था और हम तवक्को ये कर रहे थे कि आज कुछ ज़्यादा अच्छी तकरीरें सुनने को मिलेंगी। सही। लेकिन हम दोनों, मैं और इदरीस गाजी साहब, यही डिस्कस कर रहे थे कि आज ज़रा वो मयार नहीं था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सही। या जो कल था या परसों था। तो बेसिकली आज के जो नताइज हैं ये काफ़ी लो स्कोरिंग पे गए। इसमें बार बार जैसे मैं अर्ज़ करता हूँ कि तलफ़्फ़ुज़ का सबसे बड़ा मसला आ रहा है। इसमें कत्ल इस्तेमाल हुआ। मौजू जो था ये नस्ल इनकलाब, तो बार बार नस्ल कहा गया, जो कि कानून को भी करीह लगता है और जो कि बहरहाल नंबर काटता है। हर प्रोग्राम में हम ये कहते हैं कि आप अकील अब्बास जाफ़री साहब हैं जो उर्दू लुग़त बोर्ड के, उन्होंने बड़ी मेहनत से ये प्ले स्टोर में एक ऐप तैयार की है, 22 जिल्दों में है, उर्दू
लुगत, उसको डाउनलोड कीजिए, उसमें आप तलफ़ुज़ भी देख सकेंगे, उसको कम से कम एक मरतबा रेफ़र तो कर लिया कीजिए। बहुत सारे मसलन एक मुकर्रिर ने अवाम को मुअन्नस कर दिया, हमने अवाम बोलती है, अवाम खाती है, अवाम पीती है, जबकि अवाम जो है मुज़क्कर जमा में बोला जाता है, अवाम बोलते हैं, अवाम खाते हैं, अवाम कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो आजकल भी हो रहा है, लेकिन इन नौजवानों ने गलती की, इन्होंने रेफ़र नहीं किया कहीं से, लिहाजा बजा तौर पे उस पर भी उनके नंबर आम की जमा है ना, कटते हैं। आम अकेला आम, हाँ, अवाम वो जी, मुज़क्कर है, आम से अवाम बनाए। अवाम भी मुज़क्कर है। हाँ, असल में ये पड़ोसी मुल्क में चूँकि जनता का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और वो मुअन्नस में होता है, जनता बोलती है, तो बदकिस्मती से हमारे मीडिया ने भी उसको जब लिया तो जनता को तो अवाम से रिप्लेस कर दिया, मगर फिर उसकी तस्कीर और तानीस की तरफ ध्यान नहीं दिया, जो कि देखिए अगर मैं ये कहूँगा अवाम जानती है तो लोग कबूल कर लेते हैं, गलत है वो, अवाम जानती है। अगर मैं कहूँ अवाम जानता है तो लोग हैरत करेंगे, गलत है। तो अगर हम कहें कि अवाम जानते हैं जी, तो वो दुरुस्त वही मैंने कहा ना, जमा मुज़क्कर जो है उस सीगे में बात होगी। सही। अच्छा, फिर 58% यहाँ पे लिटरेसी रेट की किसी ने बात की थी, वो कहीं से कोई रेफरेंस नहीं लेके आए, क्योंकि 58% जहालत उन्होंने कहा था कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। सही। तो जो भी परसेंटेज है, इदरीस गाजी साहब अपने हर प्रोग्राम में कहते हैं कि जब आप कोई फिगर लेके आते हैं तो खुदा के लिए उसका हवाला ज़रूर दिया कीजिए कि ये फ़लानी जगह से हमने ये फ़िगर लिया है, ताकि अगर हमें भी रेफ़र करना पड़े या इस मुबाहिसे को सुनने वाला कोई भी जब चैलेंज करेगा इस मालूमात को, तो उसके पास एक रेफरल तो हो ना कि मुकर्रिर ने कहाँ से ये रेफरेंस लिया है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी और यही एक ज़रा सा तलफ़ुज़ के और ये सारे मसाइल, मगर उसमें उनके नंबर कट से, बाकी इदरीस साहब बताएंगे। सही, शुक्रिया। इदरीस साहब, आप क्या कहेंगे आज? मुकाबला निस्बतन कल तो आपने उनका इम्तहान नहीं लिया स्पीकर से, कल आपने हमारा इम्तहान ले लिया था। सही है। और आज आपने स्पीकर्स का इम्तहान ले लिया। सही। तो माशाल्लाह मेहनत करेंगे तो और भी आगे जाएंगे। ज़ाहिर है कि हर तालिब इल्म उस महराज पे, उस दर्जे पे नहीं होता, इर्तकाई मराइल आहिस्ता आहिस्ता तय होते हैं। तो हम आपकी हौसला शिकरी नहीं कर रहे, आपने बहुत अच्छा बोला और बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आइंदा और अच्छा बोलेंगे इंशाल्लाह। एक जगह आप जैसे आप कायम कर कर, बयान कर कर, ये जो ना तनाफुर हरफी में आता है, बुरा लगता है, बयान करके, कायम करके। सही। ये अक्सर बच्चे ये बोलते हैं या आप टीवी पे अक्सर सुनते रहते होंगे, जहाँ गलत बोला जा रहा है तो वो बयान कर कर हमने किया, करके ज़्यादा मुनासिब होगा। और फिर कहीं पे किसी ने कहा कि लोग खून देती हैं, मुझे अजीब सा लगा, लोग खून देते हैं या कुर्बानी देते हैं। बाकी अब वो ज़बान की वजह से भी हो सकता है कि किसी की मादरी ज़बान उर्दू ना हो तो वो ख़ुद को खुद कहे या ख़त्म को ख़त्म कहे। सही। तो एक लफ्ज़ मैं ख़ास तौर पर निशानदेही करना चाहूँगा कि सहर अलग लफ्ज़ है, सहर अलग लफ्ज़ है, ठीक है ना। सहर ज़ेर के साथ यानी जादू, सहर ज़बर के साथ यानी मॉर्निंग, डॉन, सुबह का होना, ठीक है ना। तो आप कहना चाह रहे थे सहर के खुशियों की सहर आने वाली है या अच्छाई की तरफ निशानदेही आप करना, लेकिन जहाँ हमने कहा खुशियों की सहर आने वाली है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सहर का मतलब होता है जादू। तो बहरहाल ये मुकाबला आज अच्छा रहा, लेकिन आज ये हुआ कि हमें चारों पोजीशन अलग-अलग तयन करने की हम पोजीशन में आ गए। एक बात मैं जिसके ख़ास तौर पर निशानदेही करना चाहता हूँ, आज मुबाहिसा था ना, तो डिबेट का मतलब ये रद्द दलील पर है। कंटेंट तो है लेकिन दलील आप देंगे, रद्द दलील। अब पहला मुकर्रिर जो सबसे पहले बोलता है वो रद्द दलील कैसे दे? अक्सर ये तलबा हमसे सवाल करते हैं कि जी मैं तो बिल्कुल पहले नंबर पर बोल रहा हूँ तो मैं क्या रद्द दलील दूंगा? उसमें मुबाहिसे के कवायद ये होते हैं कि आप ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि जी मेरे बाद आने वाले ये कहेंगे तो उनकी ये बात भी गलत होगी, मेरे बाद आने वाले ये कहेंगे तो उनकी ये बात भी गलत होगी, मेरे बाद आने वाले ये बात करेंगे तो ये सारी बातें गलत होंगी। आप उनको पहले से ही माइनस कर दें, यानी उनको पहले से उनको झूठा साबित कर दें। ये भी एक डिबेटिंग का मुबाहिसे का हुनर होता है। तो थोड़ा सा रद्द दलील आज कम महसूस हुआ, लेकिन आइंदा इंशाल्लाह आप एक फर्जी दुनिया आप बना लें और फिर उसके हिसाब से आप मुकाबला करें। ठीक है, बहुत अच्छी आपने निगरानी की। हमारे पास अब रिजल्ट तैयार हैं ऑलमोस्ट, और मैं इदरीस गाजी साहब से, डॉक्टर अंजुम रिजवी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ आकर रिजल्ट भी दें, तहाइफ भी दें और बच्चों की हौसला अफजाई भी करें। साथ साथ मैं गुजारिश करूँगा सीमा गजल साहिबा से कि आप भी हमारे साथ आएँ, जो सेकेंड बल्कि
फोर्थ और थर्ड पोजीशन होती है वो आपके हाथों से जाएगी इंशाअल्लाह। तो आज के रिजल्ट बहरहाल मैं तवक्को रख रहा हूँ, आज जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेलती है बाज़-औक़ात आप तवक्को नहीं रखते, बहुत अच्छी खेल जाती है, बाज़-औक़ात बड़ी उम्मीदें आपकी वाबस्ता होती हैं और मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे ही है, तकरीर की दुनिया भी बिल्कुल ऐसी ही है। 3 मिनट के अंदर आप जिस तरह अपने आप को प्रेजेंट कर पाए उस हिसाब से आपके उन 3 मिनट के हिसाब से जजमेंट हुई है। आज फोर्थ पे कौन है? चौथी पोजीशन जिस कैंडिडेट के लिए है उसकी चौथी पोजीशन क्यों है? उसकी चौथी पोजीशन इसलिए है कि उसको 3 मिनट का वक्त दिया गया था और उसने कम वक्त में अपनी तकरीर मुकम्मल कर ली, अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। लेकिन अगर आपने कम कंटेंट दिया है तो ज़ाहिर है आपको नंबर कम मिले, जिसने 3 मिनट पूरा इस्तेमाल किया उसको कंटेंट में ज़्यादा नंबर मिल गए होंगे। तो इस हिसाब से आपकी चौथी पोजीशन बनती है मिर्ज़ा अशर बेग। मिर्ज़ा अशर बेग को सीमा गज़ल साहिबा ये तोहफा देंगी और आज चौथी पोजीशन आपने हासिल की है। शाबाश। कोशिश करना इंशाल्लाह। हम किताब का तोहफा भी वैसे दे रहे हैं मैडम। ये बहुत अच्छे शायर भी हैं। अच्छा माशाल्लाह। साथ साथ तीसरी पोजीशन आज कौन ले पाया? तीसरी पोजीशन पे जो नाम है वो है हैदराबाद से हैं रुमीना फराज। तीसरी पोजीशन पे रोमिना फराज आई हैं और गजालीज हर्बल की जानिब से इनको एक तोहफा है। सीमा गजल साहिबा ये तोहफा दे रही हैं। गजालीज हर्बल का कहना है कि हम हर दफ़ा मुकर्रीन को या कोई और इनाम पाने वाला हो उसकी हौसला अफजाई करते रहेंगे। साथ साथ दूसरी पोजीशन पे कौन है आज? अंसार बर्नी साहब को भी बुला जी लें। अंसार बर्नी साहब, आपसे गुजारिश करूंगा आज सेकंड पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन का इनाम आपके हाथों से जाएगा। गजालीज हर्बल ये तोहफा दे रहे हैं और अंसार बर्नी साहब इस तोहफे को आगे बढ़ा रहे हैं। किताब का तोहफा भी है इदरीस गाजी साहब की तरफ से। 2 तोहफे जाएंगे आज बच्चों को। जिसने दूसरी पोजीशन हासिल की है उसका नाम है, अच्छा ये दूसरी पोजीशन क्यों आई है वो इसकी वजह भी यही है। ये मुझे रात को बहुत सारे लोग इनबॉक्स में मैसेज करते रहते हैं कि हमें तो ये पोजीशन आनी चाहिए थी, तो वजह बता दिया करें। वजह मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। रद्द दलील के मैंने कहा कि अहमियत है, अगर रद्द दलील कम रखेंगे तो आपको नंबर कम मिलेंगे। तो स्पीकर बहुत अच्छे हैं, मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर बहुत अच्छा मुकर्रर, लेकिन रद्द दलील के नंबर एक आधा नंबर कम हुआ, इसकी वजह से इनकी पोजीशन दूसरी बन गई। तो सेकंड नंबर पर तशरीफ़ लाएँ मुदस्सर अली। मुदस्सिर अली दूसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए, ये भी तोहफा जाएगा। तहाइफें आज आपके लिए। मुदस्सिर अपना इनाम वसूल कीजिए। तो आज पहली पोजीशन किसको जा रही है मैं आपको बताता चलूं। पहली पोजीशन के लिए आज अल कफील ट्रैवल एंड टूर्स की तरफ से मोबाइल स्मार्टफोन का तोहफा भी है। पहले नंबर पे जो तालिब इल्म है उनका नाम है शर्जील बेग। शर्जील बेग साहब, अंजुम साहब प्लीज। जी माशाल्लाह बेटा, शाबाश। ये नाम देते हुए तस्वीर बना लीजिए, ज़रा सामने दिखाइए कैमरे में। हाँ शाबाश।